Ramarajisabastani Korolo Brahmanarange Ramarajisabastani Ramarajisabastani Korolo Brahmanarange Sisabastana Heribo Ami Kanayi Bhakata Sangye Mudangabadya Sunite Mana Avasara Sada Jache Mudangavadya Sunite Mana Avasara Sada Yache Gaura Vihita Kirtana Shuni Ananda Hudaya Nache Gaura Yugalamuti Dekhiya Mora Parama Ananda Hoya Yugalamuti Soft Yugalamuti Dekhiya Mora Parama Ananda Hoya Prasada Seva Korita Hoya Sakale Papanchaya Jidina Grihe Bhajana Deki Ruhete Goloka Bhaya Jedina Grihe Bhajana Deki Ruhete Goloka Bhaya Charana Sindhu Dekhiya Ganga Shukanashi Mahapaya Charana Tulasi Dekhi Juraya Prana Madhava Toshani Jani Tulasi Dekhi Juraya Prana Madhava Toshani Jani Gaura Priya Shaka Sivani Jivana Sata Kamani Bhakati Vinoda Krishna Bhajana Anukula Paya Jaha
Bhakti Vinoda Krishna Bhajan Anukula Payajaha Prati Divase Parama Sukhe Svikara Koro Yetaha Shuddhabhakata Cherana Renu Bhajananu Kula Bhakata Seva Parama Siddhi Prema Radhikara Mula Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jainam Sankirtanki, Srila Prabhupada ki. We'll read the translation. Translation. The dust of the lotus feet of pure devotees, enthusiastic devotional service, and service to the pure devotees of the highest order are the roots of the creeper of devotion. पढ़िए. The holy days like Ekadashi and Janmashtami are the mother of devotion. For those devotees who respect them, let the holy place of Krishna pastime be my place of worship and blessing. May I always visit all the holy places associated with the Leela of Lord Chaitanya and his devotees. When I hear Let others get chance. in my heart, I always desire to join with them. And when I hear the bona fide songs reflecting Lord Chaitanya's pastime, my heart dances in ecstasy. Whenever I see the transcendental Sri Vigrahas of Radha Krishna, I am in bliss. For by taking the Lordship's prasada, we can conquer over the material enemies. One day while performing Each one can recite only one verse. One day while performing devotional practice, I saw my house transformed into Goloka Vrindavan. When I take the charanamrit of the deity,
I see the holy Ganges water was that come from the feet of Lord Vishnu, and my bliss known no bounds. I sing the Tulsi Giri, my heart with joy. Lord Madhava is also blessed. When I eat the prasad prepared by Lord Chaitanya, it is a new life experience. Lord Chaitanya is a green vegetable preparation called sak. And there is another song in this book that tells the difference of this type of prasad. Bhakti Vinoda concludes by saying, whosoever attains the stage of enthusiasm for these devotional practices will be supremely blissful wherever he may be. Wherever he may be. But okay, we'll discuss. Vamajnanatimirandasya jnananjanashalakaya chakshurmitam yena tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Gadamriyam Dadati Swapadankitam Vandeham Shri Guru Shri Yuthapadakammalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagajatam Sagana Raghunathanvitam Tam Srivam Sadvaitam Savadutam Brajanasetam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sagana Lita Shri Anvitamscha Namo Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Nityamine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshitarini Namo Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Siddhanta Saraswati Dinamine Shivarshabhanavi Devi Dhaitaya Kapabde Krishna Sambandha Vijnana Dhaini Bhave Namaha Madhuryojjwal Premadya Sri Rupanga Bhaktida Sri Gaura Karuna Shakti Vigrahaya Namostite Namaste Gauravani Sri Murte Dinatarini Rupanuga Viruddha Apasiddhanta Dvanta Harini Namo Gaura Kishoraya Sakshat Vairagya Murte Vipralambara Sambode Padambujayate Namaha Namo Bhakti Vinodaya Satchidananda Namini Gaura Shakti Rupaya Rupanuga Varayate Gaura Vibhavishwam Nidyashta Sajjana Priya Vaishnava Sarvama Sri Jagannatha Iti Namaha Vancha Kalpatarubhyasya Kripa Sindhirabhi Evacha Patitanam Pavanebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namini Gauratvishe Namaha Panchatatmatmakam Krishnam Bhaktarupa Swarupakam Bhaktavataram Bhaktakyam Namami Bhakta Shaktikam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namuside Jayadam Surado Pangur Mamanda Matirgati Matsarasya Bhadambujo Radha Madana Mohanu Divyadvandharanya Kalpadhrumada Srimad Ratnagar Simhasanastu Srimad Radha Srila Govinda Dev Krishtali Bhisevyamana Smarami Srimad Rasa Sarambi Vamshi Vata Tarasitha Karshan Venu Swani Gopir Gopinata Sri Sunha Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vandavaneshwari Vrishabhanasute Devi Pranamami Hari Priya Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhakta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare हरि ओम तत्सत। आज स्पेशल तिथि है एकादशी तिथि। इस उपरांत हमारे सारे इस्कॉन मंदिरों में प्रभुपाद जी के बारे में, प्रभुपाद जी का लीला के बारे में चर्चा करते हैं और उनसे शिक्षा लेते हैं। उसी परंपरा में चलते हुए आज हम प्रभुपाद जी के ऊपर कुछ चर्चा करेंगे। और चर्चा करने से पहले अभी जो भजन गाया था ये बहुत रिलेवेंट है, हमारा डे टू डे डिवोशनल प्रैक्टिस में बहुत रिलेवेंट है। वो कैसे हम समझेंगे धीरे धीरे।
ये जो भजन है भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखते हैं और बताते हैं कि कैसे एक शुद्ध भक्त का चरण रेणु जो है हमारा भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए बहुत हमको मदद करते हैं। और जैसा कि एकादशी व्रत पालन करने से, जन्माष्टमी तिथि, ऐसा बहुत सारे उत्सव है और उसको रेस्पेक्ट करते हुए, उसको पालन करते हुए और भगवान के लिए प्रसन्नता के लिए सेवा करते तो वो बहुत हमको उत्प्रेरक प्रेरणादायक बनता है और हमको अच्छे से आशीर्वाद भी मिलता है। और ऐसा करके पूरा भक्ति विनोद ठाकुर एक पूरा कृष्ण कॉन्शियसनेस को एक छोटा सा भजन के रूप में हमको प्रस्तुत किया। इसलिए जो भजन है आचार्यों का वो हमेशा इसको बोलते पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी, उसके ऊपर है, परे है। क्योंकि ये जो जनरली कहा जाता है कि भगवत इज ए ग्रेजुएशन 10th क्लास स्टडी एंड द श्रीमद् भागवतम इज ए ग्रेजुएशन स्टडी एंड चैतन्य चैतन्य इज पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी। और उसके ऊपर जो रिसर्च करते हैं और वो है PhD लेवल पे आचार्यों का भजन। इसमें सारे कृष्ण कॉन्शियसनेस का और पूरा भक्ति का सार है। इसलिए जो व्यक्ति सुबह उठ के और भगवान के भक्तों से रचित ये भजन गाते हैं उसका जो चेतना है हमेशा कृष्ण भावना भावित रहते हैं। इट्स ए प्रूवन फैक्ट। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने हमारा इस्कॉन में जो प्रोग्राम दिया है, मॉर्निंग प्रोग्राम, सबसे पहले हम भजनी गाते हैं, है ना? क्या गाते हैं? संसार धावा नरलीदा लोका त्राणाय कारुण्य गना गना त्वम। सुबह उठ के ही गुरुदेव का चिंतन करते हुए हम हमारा जो कृष्ण कॉन्शियस डे को चालू करते हैं। देख सकते हैं ये भजन का कितना महत्वपूर्ण है। उतना ही नहीं, कोई भी आरती हो भगवान का गुणगान ये भजन से ही चालू करते हैं। नरसिंह आरती हो, तुलसी आरती हो, गुरु पूजा हो, भोगा आरती हो, शयन आरती हो, संध्या आरती हो, हर एक जगह पे भजन इंक्लूडेड ही है। जो आचार्यों का रचित भजन है ये इंक्लूडेड है, क्योंकि ये जो है हमको बहुत बूस्टिंग करता है भक्ति में, हमेशा कृष्ण भावना भावित रहे। और आज हम चर्चा करेंगे प्रभुपाद जी को कैसे हम कनेक्ट कर सकते हैं। हम काफ़ी बार सोचते हैं कि अभी करंट जनरेशन सोचते हैं कि हमको प्रभुपाद जी का फिजिकल एसोसिएशन तो नहीं मिल रहा है, फिजिकल कनेक्शन तो नहीं है, मतलब प्रभुपाद जी को सामने आदान प्रदान करना अभी हमारे लिए असंभव है। और जो प्रभुपाद शिष्य है वो बहुत प्रभुपाद जी का बहुत कृपा प्राप्त किए हैं। फिर हमारे लिए कैसे हम प्रभुपाद जी से कनेक्ट कर सकते हैं? गेस कीजिए कैसे कर सकते हैं हम लोग? यस, हाँ, सबसे पहले हम प्रभुपाद जी को जानकारी करते तो कनेक्ट हो सकता है। जैसा कि प्रभुपाद जी की बताते कि हमारा मिशन जो है सब लोगों को जो अंदर ऑलरेडी इनेट नेचर जो है कृष्ण भावना भावित, जो भगवान कृष्ण के प्रति जो प्रेम है उसको जागृत करना है, उसको जगाना है। इसको जगाने के लिए सबसे पहले हमारा गौड़ीय परंपरा में क्या है? संबंध, जो संबंध हम भूल चुके हैं कृष्ण भगवान के साथ, उसको वापस याद दिलाए, पुनः किए। और सबसे पहले हम आचार्यों से, हम प्रभुपाद जी से संबंध स्थापित करेंगे कैसे? वो खुद ऑलरेडी डिक्टेट करके गए थे, इफ यू वांट टू नो मी रीड माय बुक्स, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू डू
Please thoroughly study, carefully, scrutinizingly study my books. Like that, Prabhupada boldly gives statements in different questions. One who reads Prabhupada books, definitely he will come to know his mood and mission. Not only that, so many things he will get to know, personal applications, preaching applications, so many things. In the early days, हम शुरुआत का दिनों में देखा जाए तो प्रभुपाद जी A to Z सिंगल हैंडली करते थे. फॉर एग्जाम्पल, एक पास्टर में याद आ रहा है कि जुहू में DT डिपार्टमेंट में बहुत सारे कॉकरोच हुआ था शुरुआत दिनों में, जब राधा राजबेरी छोटा शेड में था उस समय पर. और भक्त लोग पूछ रहा था कि कॉकरोच बहुत हो रहे प्रभुपाद जी, क्या करना चाहिए, कुछ सुझाव दीजिए. और एक साइड बड़े बड़े दिग्गज लोग, तमाल कृष्णा और गिरिराज स्वामी महाराज जैसा बड़े बड़े महारथी भक्तगण, वो आके पूछ रहे प्रभुपाद जी ये केस कैसे लड़े हम, ये बॉम्बे का जो लैंड डीलिंग केस है वो कैसे लड़े. A to Z, टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप, अकेले सिंगल हैंडेडली मैनेज करते थे. और उस समय पे हम देख सकते हैं जगह जगह पे, विदेशों में, वियतनाम में वार हो रहा था और जगह जगह पे अलग अलग मंदिरों में अलग अलग चैलेंजेस था, डिफिकल्टीज था, और सबको प्रभुपाद जी आंसर कर रहे. ऐसा नहीं कि किसको आंसर नहीं दिया, नहीं आपको अभी समय नहीं है, बाद में आप, ऐसा कभी नहीं बोला. और सबको टाइम देते थे और सबको सुझाव देते थे कैसे करना है, कैसे डीलिंग करना है, कैसे व्यवहार करना है. हम देख सकते हैं प्रभुपाद जी का शुरुआत दिनों में उस पाश्चात्य लोगों को बिल्कुल पता नहीं चला कैसे एक आचार्य से, एक गुरु से व्यवहार करना है, बिल्कुल पता नहीं. एक बार श्याम सुंदर प्रभु जुहू में जब उन्होंने बुक लॉन्च करने के लिए आया था, उन्होंने शेयर किया था कि कैसे वो लोग को बिल्कुल संस्कार, कुछ कैसे बातचीत करना, कैसे व्यवहार करना, कुछ भी पता नहीं था. एक बार क्या हुआ था, प्रभुपाद जी के साथ श्याम सुंदर प्रभु कहीं जा रहा था कार में, और श्याम सुंदर प्रभु एक एप्पल लेकर आया था, और उन्होंने एक बाइट लिया और स्वामी जी यू लाइक टू हैव अ बाइट, ऐसा करके ऑफर कर रहा था. बिल्कुल पता नहीं कैसे व्यवहार करना है. एक आचार्य के साथ ऐसा कोई करता है क्या? जनरली नहीं, कोई नहीं करता. लेकिन प्रभुपाद जी इसको टॉलरेट किया, उन लोगों को शिक्षा दी कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे एक गुरु जी के साथ व्यवहार करना चाहिए. और एक ओकेशन में ऐसा हुआ कि प्रभुपाद जी, एक आई थिंक कनाडा समवेयर, प्रभुपाद जी आ रहे हुआ था और एक शिष्य भागते हुए आके प्रभुपाद जी को ऑल इन कैन किया और किस किया. जनरली कोई प्यारे लोग आते तो वेलकम ऐसे करते हैं ना वेस्टर्न कंट्रीज में. अभी हम लोग सोचे कि नॉर्मल है, और प्रभुपाद जी बगल में तमाल कृष्ण महाराज खड़े थे, उनको देख रहा था क्या शिक्षा दे, क्या ट्रेनिंग दिया आप ऐसा करके उनको देख रहा था. अभी देख सकते हैं कि एक वर्ल्ड फेमस आचार्य इन सब चीजों को टॉलरेट कर रहे हैं और शिक्षा भी दे रहे. और देख सकते हैं जो संस्कार से विहीन है उन लोगों को भी संस्कार सिखाया, कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे डीलिंग करना चाहिए. They are fortunate enough to associate with Prabhupada and get trained under his direct supervision. And what about us? एक सोचने की बात है कि नहीं? इसलिए हमको प्रभुपाद जी का पुस्तक स्क्रूटिनाइजिंगली एवरी डे विदाउट फेल पढ़ना चाहिए, है ना. एवरी डे विदाउट फेल हम कुछ स्टमक के लिए देते हैं ना, कुछ खा पीते हैं ना जीने के लिए, वैसे ही हमारा आध्यात्मिक जीवन में हम हमेशा अलाइव रहना चाहिए. तो क्या करना चाहिए हमको? प्रभुपाद जी के ग्रंथ एवरीडे पढ़ना चाहिए विदाउट फेल. There should be no lenience or no lacking, no postponing. वो नेचर ही नहीं होना चाहिए. अगर ऐसा
नेचर हमारे अंदर आया, नहीं तो हमारे अंदर है। इसका मतलब है हमें अभी भी कृष्ण भावना भावित में क्या बोलते हैं, जागरण नहीं हुआ, अभी भी निद्रा अवस्था में है हम। ये सिंपल फार्मूला है, हम हमेशा याद कर सकते हैं। हम हमेशा प्रभुपाद जी का ग्रंथ एवरीडे विदाउट फेल पढ़ना चाहिए। जय श्री श्री राधा माधव की, जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की, जय श्री श्री गौर निताई की। हम प्रभुपाद जी ग्रंथ पढ़ के हम प्रभुपाद जी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं प्रभुपाद जी के साथ? हाउ वी कैन कनेक्ट? हाँ, कुछ भेंट देके, हाँ, वी कैन गिव सम गिफ्ट्स एंड गेट सम गिफ्ट्स फॉर प्रभुपाद, है ना। कोई भी मंदिर आते तो खाली हाथ नहीं आते, कुछ ना कुछ भगवान के लिए भेंट लेके आता है। वो तो इनफॉर्मल हो जाएगा ना। ओके, राइटिंग लेटर्स एंड रिवीलिंग अवर हार्ट, दुखी बात, जैसा कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में रूप गोस्वामी इंस्ट्रक्ट करता है कि हमारा जो हार्ट है रिवील करना चाहिए। मैं शुरुआत में मैं काफ़ी सारे एक्सपीरियंस किया था भक्ति में। काफ़ी सारे भक्त लोग मेरे को सुझाव दिया कि अगर आपको कुछ डिफ़िकल्टीज है, कुछ आपको किससे बातचीत करना है, कुछ बोलना चाहते हो, जाओ सीधा प्रभुपाद जी के पास जाओ, प्रभुपाद जी के आल्टर के पास जाके प्रभुपाद जी को प्रणाम करो और आपका जो भी है मन में उनको व्यक्त करो, और प्रभुपाद जी सुनते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आपको सुझाव देते हैं। मैं ऐसे सुन रहा था बस, लेकिन काफ़ी बार मैं एक्सपीरियंस भी किया और लोग दूसरे भक्त भी वो एक्सपीरियंस करते हुए मैं ऑब्जर्व किया था। तो होता है ये, और प्रभुपाद जी खुद बताता कि आई विल लिव इन माई बुक्स एटर्नली, मैं मेरे किताबों में हमेशा जीवित रहता हूँ। इसलिए हम आप सब लोग प्रभुपाद जी का ग्रंथ पढ़ना चाहिए और हमारा जो भी है हार्ट है भगवान प्रभुपाद जी के सामने शेयर कर सकते हैं। और कैसे कनेक्ट कर सकते हैं हम प्रभुपाद जी से? क्योंकि अगर भगवान के पास हम जाना चाहते हैं, उनका नित्य धाम में हम जाना चाहते हैं, नित्य धाम में जाने के लिए किसी एक भक्त का रिकमेंडेशन कंपलसरी है। विदाउट रिकमेंडेशन हम गोलोक धाम भगवत धाम नहीं जा पाएंगे। हमारा इस्कॉन में रिकमेंडेशन, इस्कॉन की तरफ से रिकमेंडेशन किनका चलेगा? प्रभुपाद जी का ही चलेगा। और बाकी भक्तों का भी चलता होगा, लेकिन सुप्रीम अथॉरिटी इन इस्कॉन इज श्रील प्रभुपाद। सो उनका रिकमेंडेशन तो ब्लाइंड फुल्ली एक्सेप्ट कर देगा, हमको एंट्री पास मिलेगा गोलोक धाम में। इसलिए हमको प्रभुपाद जी को जानना जरूरी है, उनके साथ संबंध स्थापित करना जरूरी है, और भगवत धाम हम उस संबंध से वजह से हम वापस जा सकते हैं। सोचिए और कैसे हम प्रभुपाद जी से कनेक्ट कर सकते हैं। एक है रीडिंग प्रभुपाद बुक्स एंड वन मोर इज ओपनिंग आवर हार्ट टू प्रभुपाद। हाँ, हियरिंग हिज लेक्चर्स, है ना। उस समय पे हम तो नहीं था, प्रभुपाद जी जब डायरेक्ट लेक्चर्स डिलीवर कर रहा था, जो उपस्थित है वो बहुत सौभाग्यशाली है। लेकिन हमको उन शिष्यों के वजह से हमको अभी भी उपलब्ध है वो रिकॉर्डिंग्स, हम उसको सुन सकते हैं एवरीडे। और एक पास्ट टाइम है कि जब प्रभुपाद जी लंदन में लेक्चर कर रहा था, नारद मुनि और व्यासदेव स्वयं दोनों आके प्रभुपाद जी के लेक्चर में बैठे थे। ये कोई बनावटी स्टोरी नहीं, एक ट्रू स्टोरी है। अभी भी जाए तो उस मंदिर में जब भागवतम क्लास होते तो 2 सीट खाली रखते हैं। मैंने सुना हूँ बट मैंने देखा नहीं। अभी भी 2 सीट रखते हैं
वो 2 पर्सनालिटीज के लिए। प्रभुपाद जी के लेक्चर सुन सकते हैं और लेक्चर्स के माध्यम से हम प्रभुपाद जी को कनेक्ट कर सकते हैं। और कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? डेली अटेंडिंग गुरु पूजा, नॉट ओनली गुरु पूजा, अटेंडिंग फुल मॉर्निंग प्रोग्राम विदाउट फेल। ये हमारा खुद का साधना भी आगे बढ़ेंगे और प्रभुपाद जी का जो इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करते हुए उसको फुलफिल कर सकते हैं, है ना। जनरली हम बोलते हैं कि गुरु विल लिव इन हिज इंस्ट्रक्शंस। वो इंस्ट्रक्शन के माध्यम से हम कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि प्रभुपाद जी ने बोला कि एवरीवन मस्ट एंड शुड अटेंड फुल मॉर्निंग प्रोग्राम। एक बार प्रभुपाद जी के शिष्य ने, कुछ शिष्यगण गए थे प्रभुपाद जी के पास, प्रभुपाद जी हमारे से 16 माला नहीं हो रहा है, हम नहीं कर पाएंगे। मन में कुछ इंटेंशन रख के गया था, प्रभुपाद जी कुछ लीनेंस होके कुछ कम किए नहीं, प्रभुपाद जी बोले नहीं, नो कॉम्प्रोमाइज, चैंट 16 राउंड्स डेली, फॉलो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, attend full morning program and do your sadhana. There is no leniency or no compromise. अगर हम ये प्रभुपाद जी का जो इंस्ट्रक्शन है स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, हम भक्ति में हमेशा ब्लिसफुल रह सकते हैं। काफ़ी सारे भक्त लोग बोलते हैं हम बहुत सारे प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत सारे जप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, लेकिन आनंद प्राप्त नहीं हो रहा है। उसका कारण क्या है? अभी भी हमारा संबंध जो है प्रभुपाद जी से बराबर नहीं जुड़ा है, वही कारण। जब जुड़े तो हमको आनंद हमेशा प्राप्ति अनुभूति हो जाएगा। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षती। भगवद्गीता में भगवान ने बताया कि जो ब्रह्मभूत स्टेज में है वो हमेशा आनंद प्राप्त करते हैं, आनंदमय होते हैं उनका हर एक एक्शन एक्टिविटी। और कैसे कनेक्ट हो सकते हैं हम प्रभुपाद जी से? माता जी साल कैन कंट्रीब्यूट। और कैसे कनेक्ट हो सकते हैं? Visiting the Leela Sthalis of Prabhupada. Okay. Yes, definitely. That's why we do yatras very frequently. टाइम टू टाइम हम जगह जगह यात्रा जाते हैं ताकि हम भगवान का जो लीला धाम है उसका दर्शन करें और याद करें भगवान का जो अलग अलग गुणों के बारे में, लीला के बारे में स्मरण करें और आचार्य उनका कृपा को महसूस करें, अनुभूति फील करें। इसलिए हम टाइम टू टाइम यात्रा निकालते हैं। प्रभुपाद जी का लीला स्थली का दर्शन करने से मात्र हम संबंध जोड़ सकते हैं। हाँ, और yes, distributing Prabhupada books. Prabhupada always says, if you want to please me, distribute my books. इसको अदर को एंगल से देखा जाए तो फॉलो द वाणी, वाणी ऑफ प्रभुपाद। जनरली गुरु का 2 प्रकार की सेवा होता है, वपु सेवा और वाणी सेवा। वपु सेवा मतलब जो फिजिकल प्रेजेंस में गुरु जी का जो सेवा हो जाता है वो वपु सेवा है। वाणी सेवा है उनका इंस्ट्रक्शन के माध्यम से, वो फिजिकली प्रेजेंट हो ना हो हमेशा वो अपनी वाणी के माध्यम से उपस्थित रहता है और उनका वाणी का पालन करने से हमको हमेशा गुरु का प्रेजेंस फील हो जाता है। जैसा कि प्रभुपाद ने ऑलवेज इंस्ट्रक्शन देता है कि प्रीच कृष्ण कॉन्शियसनेस, ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्रैक्टिस एंड प्रीच एज मच एज यू कैन, है ना।
कितना आपसे हो सकता है उतना प्रचार करो। प्रचार करते ही हम क्या बोलते हैं, हमेशा एक्टिव रह सकते हैं। अगर प्रचार नहीं करते तो एक्टिव रहना ये कलयुग में हमारे जैसे बद्ध जीवन के लिए बहुत मुश्किल है। और बिना प्रचार किए हम सोचे कि हाँ मैं भगवान का नाम जप करूँगा, मैं अच्छे से भगवान के बदले भजन गाऊंगा, ऐसा भजनानंदी बनाने की कोशिश करें तो वो मुश्किल है, संभव नहीं होगा। प्रभुपाद जी के टाइम पे भी काफ़ी सारे केसेस भी हुआ था। एक भक्त ने बोला कि प्रभुपाद जी आई वांट टू चैंट 64 राउंड्स। तो ऐसा केसेस भी था। और वो इस्कॉन को छोड़ के भी गया और राधा कुंड में गया था और उधर 1-2 दिन जप किया था और कुछ दिन के बाद वो गायब भी हो गया। कोई गारंटी नहीं होता है कैसे होगा। इसलिए जो प्रभुपाद जी के जो वाणी है जैसा बोला गया है, और खास करके प्रभुपाद जी ने हमको एक अच्छा से प्रोग्राम दिया है कि एक सैंडविच प्रोग्राम दिया हमको। मॉर्निंग प्रोग्राम, सेवा प्रोग्राम एंड इवनिंग प्रोग्राम, सैंडविच। सुबह तो मॉर्निंग प्रोग्राम फुल, मॉर्निंग 4:30 टू प्रसादम टाइम टिल 9:30 और 10, और इसके बाद पूरा प्रीचिंग प्रोग्राम और सेवा 8 hours of service minimum, and then evening program again Sandhya Aarati and Shayana Aarati and Bhagavad Gita class. It's a very good sandwich program Prabhupada gave to us. One who follows, he will always be in blissful or always active also. है ना, एक कहावत भी है, बहता नदी चलता साधु हमेशा शुद्ध रहता है। प्रभुपाद जी काफी जगह जगह बोलते हैं कि प्योरिटी इज द फोर्स। वो शुद्धता कैसे आएगा हमारा अंदर, जब हम प्रचार करेगा तो आएगा। ऐसा नहीं कि हम ने 108 माला जप करें, 64 माला जप करें तब जाके शुद्ध हो जाएंगे। हाँ भाई वो भी एक फैक्टर है, लेकिन वही फैक्टर नहीं है। और हमारे जैसे जो फ्लिकरिंग कंडीशन सोल्स के लिए बेस्ट सोल्यूशन है प्रचार करना। जितना हम सीखे उतना प्रचार करें। काफ़ी सारे भक्त पूछते हैं प्रभु जी मेरे पास कुछ पता नहीं, मेरे को कैसे मैं प्रचार कर सकता हूँ, मेरे कुछ याद नहीं रहते और मेरे को कुछ न श्लोका आता है, मैं कुछ सही से बोल पाता हूँ। नहीं, वो सब की जरूरत नहीं। जब हम करते करते जो सद्गुण है, जो दैवी गुण है, अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाएगा हमारे अंदर। इसके ऊपर एक पास्ट टाइम याद आ रहा है कि जब प्रभुपाद जी वृंदावन आए थे और उनका विदेशी शिष्यगण भक्तों को लेकर आया था, उस समय पे शिष्यगण ने वृंदावन वासी के लिए खिचड़ी बना के खिला रहा था। और सारे वृंदावन वासी जो साधु बाबा लोग आके बैठे थे प्रसादन टाइम पे, और जो लिटिल सरस्वती जो है श्याम सुंदर मालती माता की बेटी, वो आया और खिचड़ी बांटने लगा। लेकिन वो बच्ची क्या कर रहा था, हर एक साधु से हरे कृष्णा जप करवा रहा था और उसके बाद ही खिचड़ी दे रहा था। और पूछ रहा भी था कुछ लोगों को भगवान कौन है, ऐसा करके कृष्णा है सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉडहेड, ऐसा। वो सब देख के प्रभुपाद जी बोलता है कि देखिए लिटिल सरस्वती जो है जितना भी उनको मालूम है उतना प्रचार कर रहा है, भले ही उनको समझ में आया है समझ में नहीं आया। अगर कोई कॉमन सेंस से देखा जाए तो छोटा सा बच्ची 2-3 साल का बच्ची को क्या मालूम पड़ता है कृष्णा इज सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉडहेड। भले ही वो रिपीट कर रहे पैरेट जैसा, लेकिन उनको अनुभव थोड़ी है, रियलाइजेशन थोड़ी है, फिर भी प्रयास कर रहे हैं। उस इंसिडेंट से हम सीख सकते हैं कि भले ही हम समझ में आए समझ में नहीं आए, लेकिन हम प्रचार करेंगे तो क्या होगा, डेफिनेटली हम हमेशा शुद्ध बन के रहेंगे।
एक जगह पे रहते तो क्या बोलते हैं, एक जगह पे सारे सामान को इकट्ठा किया जाए तो एक दिन वो सड़ जाएगा, लेकिन वही सामान को बंटवारा करो, वितरण करो, क्या होता है उसका असली उपयोग होगा। इसलिए कृष्ण कॉन्शियसनेस जो भी हम सीख रहे हैं हमारे पास नहीं रखने का, उसको बांटने का। जब बांटेगा तो क्या होगा, वो बढ़ेगा और शुद्ध भी रहेगा। दोनों चीजें, दोनों फायदा है। और बताइए, और कैसे कनेक्ट कर सकते हैं हम प्रभुपाद जी को? यस, okay, never leave devotee association, never leave ISKCON. This is one of the powerful instructions by Prabhupada and his disciples, followers also. हाँ, by distributing prasadam, yes. एक बार प्रभुपाद जी ने मायापुर में जब आया था गौर मंडल, क्या बोलते, गौर पूर्णिमा फेस्टिवल के लिए, उस समय पे उन्होंने देखा कि मंदिर के जो दीवार के बगल में जो प्रसाद के साथ काफी सारे कुत्ते और बच्चे लोग सब लड़ते हुए देखा था। प्रभुपाद जी को खुद ही पिघल गया कि देख के अभी से हमारा मंदिर के 10 मील की रेडियस में कोई भी भूखा नहीं रहना चाहिए, इंस्ट्रक्शन दिया। और अभी काफी सारे मंदिर है वो इंस्ट्रक्शन के पालन करते हुए अन्नदान का कार्यक्रम करते हैं। उसमें एक एग्जाम्पल है, हमारा भिवंडी मंदिर भी है, जगह जगह हम हर दिन अन्नदान करते हैं। और एक माता जी ने बोला कि नेवर लीव द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज एंड नेवर लीव द ISKCON। उसके ऊपर एक पास्ट टाइम याद आ रहा है कि जैसे इन द फाइनल डेज ऑफ प्रभुपाद क्या हुआ था, एक बार मध्यदिश स्वामी महाराज वो आया था, लेकिन वो अभी महाराज नहीं है, सन्यासी नहीं है, लेकिन वो आश्रम चेंज किया, वो शादी किया और ISKCON से दूर चले गए और अपना अपना जीने लगा। और बाल इतने इतने बड़े था, बहुत कुछ था, लेकिन वो आया था, मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा है, एक भक्त को मिला था दिल्ली में। वो डिवोटी उनको सजेस्ट किया था कि आप गुरु के पास जा रहे हो, अभी ऐसे बाल है, कैसे है, ऐसे जाए तो कैसे होगा, अब प्रभुपाद जी भी लास्ट स्टेज में है, ऐसा बोले तो वो अच्छे से शेव करके गया। और शेव करके, जैसे डिवोटी एसोसिएशन इज कंपल्सरी और इट्स रिक्वायर्ड आल्सो। देखिए वो छोड़ के गया, फिर भी भक्त लोग उनको मदद कर रहे हैं। और आया था वो शेविंग करके और प्रभुपाद जी के पास आया था वृंदावन में। अब वृंदावन में आया तो प्रभुपाद जी, हम जनरली सोचते हैं कि अगर गुरु के बात नहीं माना और भाग के गया, जनरली क्रोधित हो जाता है और चेस्टाइज करता है, अरे ऐसा क्यों किया, ऐसा क्या किया। लेकिन प्रभुपाद जी ने उस समय पे उनके ऊपर क्रोध नहीं दिखाया था और उल्टा कंपैशन दिखाया था। उन्होंने देखा कि उस समय पे प्रभुपाद जी ने, उनका विजन ऐसा है कि एवरी इंडिविजुअल और एवरी लिविंग सोल is a part and parcel of Krishna. We need to facilitate each living entity to practice Krishna consciousness. That is our duty. That is the duty of the Guru. वो याद रखे हुए प्रभुपाद जी मध्यदिश स्वामी और महाराज को और प्रभु को compassionately बोला, पूछ रहा था, he is asking how is your family, how is your partner, is everything settled, like that he is asking regular questions। अगर कोई एक दूसरे से मिलते तो रेगुलर क्वेश्चन पूछते हैं ना, कैसे है, परिवार ठीक है कि नहीं, सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं, वैसे रेगुलर क्वेश्चन पूछ रहा था। और मध्य दिशा प्रभु को आश्चर्य हो रहा था कि अरे प्रभुपाद जी तो, मैं सोचा कि डांटेगा मेरे को, चेस्टाइज करेगा, मैं पूरा क्रोध दिखा देगा, लेकिन उल्टा क्या किया, कंपैशन दिखाया और उनको पूछ रहा था कुछ जरूरी है क्या, ऐसा। उससे प्रभावित हो जाते हैं। देखिए वैसा छोटा छोटा एक्शन से ही हमको हमेशा पूरा जीवन भर कृष्ण कॉन्शियस प्रैक्टिस करने का एक शक्ति प्रदान होता है, शक्ति प्राप्त होता है। इसलिए हमको जरूर प्रभुपाद जी के बारे में
जानकारी होना चाहिए। आप लोगों में से कितना लोग प्रभुपाद लीलामृत पढ़े? पढ़ रहे हैं, अच्छा है, कुछ लोग पढ़ ले, बहुत अच्छी बात है। भले ही हम भगवद गीता, भागवतम, चेतन चेतन वो सब ग्रंथ समझ में आए, समझ में नहीं आए, बेटर फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड रीड प्रभुपाद लीलामृत। प्रभुपाद लीलामृत जो पढ़ेगा वो जरूर इस कान में हमेशा के लिए टिकेगा, ये गारंटी है। शुरुआत दिनों में सबसे पहला मैं जो किताब पढ़ा है वो प्रभुपाद लीलामृत है। मैं लाइब्रेरी में जाता था और जाके लीलामृत पढ़ता था। मेरे को एक स्टेटमेंट, ऐसा एक दो कुछ स्टेटमेंट है, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मैं पूरा प्रभुपाद लीलामृत पढ़ना चालू किया। देखा था कैसे एक बुढ़े आदमी, उस समय इतना भक्ति में नहीं था, कैसे वो एक इतना उम्र वाले एक भक्त जाके पाश्चात्य देश में जो अनुकूल नहीं, प्रतिकूल परिस्थिति में जाके प्रचार करते हैं और रातों रात जगते हुए सारे ग्रंथ को ट्रांसलेट करते हैं ना, जगह जगह इतना डिफिकल्टीज फेस करते हैं, इतना प्रचार करते हैं। मैं सोचा कि क्या है वो, क्यों कर रहे हैं उतना, क्या जरूरी था करके ऐसा कुछ प्रश्न उठा था मेरा मन में, और उसको उत्तर प्राप्त करने के लिए मैं पूरा प्रभुपाद लीलामृत पढ़ा। जब पढ़ा था तब मेरे को एक अटूट विश्वास आया कि ये हमारा इस्कॉन जो है एक संस्था है प्रभुपाद जी के द्वारा एस्टैब्लिश्ड। मैं सोचा कि ये एक ऐसा प्रभुपाद जी ने एक क्रिएट करके गया कि हम हमेशा आसानी से भक्ति कर सके और अपनी ये शक्ति के अनुसार कृष्ण कॉन्शियसनेस प्रोपगेशन के लिए हेल्प कर सकता है, ये समझ में आया। और उसके बाद मैं कभी सोचा नहीं थी कि इस कान में छोड़ के जाओ। जो हर दिन प्रभुपाद जी के बारे में पढ़ेगा और सुनेगा, जरूर हमेशा उनको एक मिशनरी स्पिरिट जो है हमेशा उनको अंदर जागृत रहता है। हम देख सकते हैं, अब ऑब्जर्व करते तो कुछ साल होने के बाद वो जो मिशनरी स्पिरिट है वो कम होते जाता है। काफ़ी वक्तों का ऑब्जर्व किया तो जो शुरुआत में जो मिशनरी स्पिरिट होते हैं, ये जाना है, बुक डिस्ट्रीब्यूट करना है, प्रचार करना है, और धीरे धीरे कम हो जाता है। क्योंकि हमारा जो रिलेशन है, संबंध है, प्रभुपाद जी का जो योगदान है भक्ति, ये कृष्ण कॉन्शियसनेस को बढ़ाने का, वो भूलते रहते हैं। अगर हम भूल गए तो कनेक्शन टूट जाता है। उसको इसलिए हमको रिपीटेडली पढ़ना चाहिए। ये तो प्रभुपाद का लीलामृत है। प्रभुपाद के शिष्यों ने, काफ़ी सारे भक्तगण ने काफ़ी सारे बुक्स रिलीज किया। वो हर एक किताब हम जब पढ़ते रहेंगे, जरूर हम प्रभुपाद जी के साथ संबंध स्थापित कर सकते हैं। और कैसे हम प्रभुपाद जी के साथ संबंध स्थापित कर सकते हैं? यस, बाय फॉलोइंग 4 रेगुलर प्रिंसिपल्स एंड चैंटिंग 16 राउंड्स। ये तो मिनिमम है, कम से कम ये 2 चीज तो पालन कर सकता है मिनिमम। भले ही हम अनपढ़ हो, पढ़ने के लिए इच्छा नहीं हो, कुछ भी हो, मिनिमम चीज है प्रभुपाद जी ने दिया कि चैंट 16 राउंड्स, फॉलो 4 रेगुलर प्रिंसिपल्स। ये कोई भी कर सकता है, कोई भी आम आदमी, जनता उसको कर सकता है। इसके लिए कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट जरूरी नहीं। लेकिन ये 2 चीज है, पालन करने में बहुत मुश्किल हो जाता है। भले ही आप कितना एडवांस डिवोटी हो, फिर भी बहुत सारे डिफिकल्टीज फेस करते हैं। आज हम देखे थे कैसे हम प्रभुपाद जी के साथ संबंध स्थापित कर सकते हैं।
पहले सबसे पहले हम देखा था कि प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ना है, और बाद में देखा था उनका इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, और बाद में देखा था जो प्रभुपाद जी ने जो प्रोग्राम दिया है उसको अच्छे से पालन करना है, और बाद में और देखा था कैसे हमारा साधना भक्ति को स्ट्रांग बनाना चाहिए, और प्रभुपाद जी का लीला स्तरी और प्रभुपाद जी को कुछ गिफ्ट प्रेजेंट करना, ऐसा अलग अलग जो 1-to-1 लेवल का है जो इंस्ट्रक्शन में दिया गया है, भक्तों के प्रति कैसे संबंध बढ़ाए वो पालन करने से, और full morning program, chanting, attentively 16 rounds, following 4 repeatedly, attending Srimad Bhagavatam daily and regularly. हाँ, डेली रेगुलरली बोलते तो मेरे को एक याद आ रहा कि शुरुआत दिनों में, हाँ, बुरीजन प्रभु उनका ग्रंथ में लिखता है कि उनका जो प्रभुपाद जी के ऊपर जो ग्रंथ लिखा है माय ग्लोरियस मास्टर, उसमें लिखता है कि प्रभुपाद जी कैसे भागवतम क्लास लेना है और देना है उसके ऊपर भी अच्छे से शिक्षा दिया। बुरीजन प्रभु बताता कि कैसे उस समय पे उन लोगों को संस्कृत बिल्कुल मालूम नहीं था और कैसे पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद जी एक एक वर्ड स्प्लिट करते हुए उन लोगों को रिपीट करवाता था। ऐसा काफ़ी बार हुआ कि भागवतम क्लास में लगभग 90% टाइम चला गया सिर्फ श्लोका उच्चारण में। प्रभुपाद जी एक एक शब्द को 10-10 बार दौड़ाया जाता, और एक एक लाइन को चांट करने के बाद उसको भी रिपीट करवाता था। और वैसा उन लोगों को हर दिन टास्क देता कि जितना भी क्लास में बैठते थे और हर एक वक्त उसको रिसेट करते थे और बाकी वक्त फॉलो करते थे, वैसा ट्रेनिंग दिया। एक एक वर्ड टू वर्ड, सेंटेंस टू सेंटेंस, श्लोका टू श्लोका, फुल डिटेल। और उतना भी नहीं, अगले दिन उसको क्या बोलते हैं, नहीं, रिपीटिशन करवाता था, चेक करता था। आगे श्लोक तो सीख रहे लेकिन पुराना श्लोक कैसे पढ़ना के भूल गए कह के उसको भी रीचेक करवाता था। ऐसा सिखाते थे। बुरीजन पर अपना ग्रंथ में लिखते हैं। हम भी ऐसा डिटेल में सीखना चाहिए, अच्छे से सीखना चाहिए और सिखाना भी चाहिए। हमारा जो कंपैशन है, प्रेम है, मैत्री है, दूसरों को कृष्ण भावना में आगे बढ़ाने के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उनको लेम एंड डम नहीं बनाना चाहिए। ये एक आदर्श लीडर का कर्तव्य बनता है कि कैसे हम अनुसार कृष्ण भावना भावित में नियुक्त करें सेवा में। ऐसा नहीं कि ऐसा नियुक्त किया जाए वो पूरा होप सी छोड़ दे भक्ति करने का, ऐसा नहीं होना चाहिए। और लीडर को एक ऐसा क्वालिटी होना चाहिए कैसे सबको एंगेज रखना चाहिए। और सबसे आसान तरीका है सबको एंगेज करने का, प्रीचिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस। जाओ, प्रचार करो, ट्राई करो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन ट्राई करो, कॉर्पोरेट ट्राई करो, 1-to-1 ट्राई करो, होम टू होम ट्राई करो। बहुत सारे इसमें प्लान्स है। और पापा जी ऐसा कभी जगह बोलते हैं कि जीबीसी एंड द लीडर्स को बोलते हैं कि नाउ यू शुड स्क्रैच योर हेड्स टू फाइंड द मीन्स एंड मेथड्स टू डिस्ट्रीब्यूट दिस बुक्स। बुक डिस्ट्रीब्यूशन कैसे आगे बढ़ाने के लिए आप लोग भिन्न भिन्न तरीका से योजना बनाइए और प्रचार कीजिए, ताकि जो मिसडायरेक्टेड सिविलाइजेशन को एक सही रास्ता दिखाए और लोग अपना जीवन का असली लक्ष्य पता करें और उसको प्राप्त करने का कोशिश करें। ये जो है नेक्स्ट लेवल है। संबंध के बाद क्या आते हैं, अभिधेय, द प्रोसेस। ये प्रोसेस जो है हमको समझ में आएगा जब हम प्रचार करें। तो क्या है वो जो प्रोसेस हमको प्रभुपाद जी ने दिया, वो है क्या? जब
पालन करने से बाद में हमको मिलेगा प्रयोजन, फल। सबसे पहला पूछा था ना, फल क्या था, रिजल्ट क्या था? कृष्ण भावना भावित पालन करने से क्या फायदा मिलता है, प्रयोजन क्या है? हाँ, भगवत धाम जा सकते हैं हम लोग। भगवान के जो एटर्नल अबोर्ड है, गोलक वृंदावन धाम है, उधर जा सकता है। वो तो बाद की बात है, अभी के लिए क्या बात है ना? वो तो प्रोसेस करेगा, मिलेगा। लेकिन अभी के लिए बात क्या है? सुसुखम कर्तुमव्ययम आनंदाम बुद्धिवर्धनम। अभी के लिए क्या है? हम हमेशा आनंद में रह सकते हैं, ब्लिसफुल रह सकते हैं। पूरा जीवन जितना भी हमको आयु प्रमाण मिला, पूरा जीवन भर हम भक्ति में आनंद से रह सकते हैं, है ना? पूरा दुनिया ये आनंद की प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं ना, भाग रहे हैं। अलग अलग भिन्न भिन्न योजनाएं बना रहे हैं और अलग अलग इक्विपमेंट बना रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं वो हैप्पीनेस प्राप्त करने के लिए। लेकिन वही हमको इधर कृष्ण भावना भावित में आसानी से मिल रहा है, by the mercy of His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. That's why we should not miss this opportunity to practice Krishna consciousness and preach Krishna consciousness. ये हमको बहुत बड़ा एक अवसर मिला है प्रचार करने का, और हम हमेशा शुद्ध बन के रहे और साथ ही साथ हमेशा आनंदमय जीवन का अनुभूति कर सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी काफ़ी बार बोलते हैं, गुरु का एक लक्षण है, एक लीडर का लक्षण है कि टाइम प्लेस सर्कमस्टांस के अनुसार एक कृष्ण भावना भावित को लोगों को समझा सके। एक क्वालिटी है, गुण है, ये भी हम अपनाना चाहिए। ठीक है, मैं इधर ही विराम करता हूँ।